हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो दोस्तों, टुडे we will be starting with one more important topic of class 10th, and in this we will starting with polynomials, that is chapter 2 of class 10th. And this chapter is very important from term 1 syllabus perspective, and it is very important for other examination as well. So this is the basic to understand the quadratic formula and the polynomials in. तो चलो समझते हैं, इसको करते हैं स्टार्ट. ठीक है, आइए फिर. So what we can do in this question? Let's see. So here it is given that if one of the zeros of the quadratic polynomial is 3. So guys, whenever there is a situation given to you, zeros, roots and solution. Whenever zeros, roots and solution are given to you, so it means if you substitute that value into the given equation, okay, the polynomial may be of degree 2, 3, 4, whatever it may be. So if you substitute the value into it, so you will get the equation equal to 0. The equation should be equal to 0. So as it is said here, one of the zeros of the quadratic polynomial is -3. So we are supposed to find the value of k here. So what we can do here is zeros, roots और solution. तो इसमें क्या कर सकते हैं, इनको substitute कर दो equation में itself. ठीक है. So what we can do here is at x is equal to -3, so k -1. In place of x we can simply write down -3, and this is 1, and that should be equal to 0. That is the property of the zeros. So zeros, roots and solution, if it is given to you and equation is given, so if you substitute the zeros, roots and solution into the equation itself, the equation reduced to 0. ठीक है. तो अब इसको सोल्व करते हैं फर्दर. तो दैट विल बी 9k -1, दैट विल बी -3k + 1 is equal to 0. Solving it further, 9k - 9 -3k + 1 is equal to 0. So that will be 6k - 8 is equal to 0. K is equal to 4/3. So k is equal to 4/3 is the right answer. And guys, this question is one of the important question of the polynomial. So you should try to solve it, and this is a very important formula or very important concept of the polynomial topic as well. So this type of questions will definitely come in examination, where one of the zeros, roots or solutions of the equation is given to you, whether it is quadratic, cubic or whatever type of polynomial it may be. तो उसमें से एक आपको रूट्स दे रखा होगा, जीरो सॉल्यूशन दे रखा होगा, और आपको कोई और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी विच इज गिवन इन द इक्वेशन इटसेल्फ. जैसे यहाँ पर k दे रखा है विच इज, ठीक है. तो इस तरह से कुछ होगा आपके लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज a quadratic polynomial whose zeros are this and this. So if the zeros of the polynomials are given to you, we can assume one of the zeros to be alpha, we can assume other to be beta. So what we can do here is x - 3. So here we have a formula to find out the quadratic polynomial or whatever type of polynomial. If the zeros of the polynomial is given to us, so we can simply write x minus alpha, x minus beta is equal to 0, because here we have quadratic polynomial. The highest power of x can be 2 only. So in place of alpha we can substitute x minus plus हो जाएगा, and that will be 4. So solving it further gives us x square minus alpha plus beta x plus alpha beta. अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करें, so you get the value this directly, and if you substitute the value of alpha and beta, so -3 plus 4 plus -3 into 4 is equal to 0. So x square minus x minus 12 is equal to 0. Guys, as you can see here the options are given to you, but the answer is -12. So here 12 is given, here 12 is given. You should not be confused with the 12 only. So it has to be -12. अब देखो थर्ड वाला ऑप्शन जो है, if you divide the whole equation by 2, what we do get from here is this becomes x square minus 2 x by 2 minus 6 is equal to 0. So that will be the right answer. ठीक है, ऐसे confused नहीं होना, and you have to be very patient in solving this type of question, very energetic, but do not get confused with the sort of question or type of solution. ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं.
So here we have the similar kind of question. Here zeros of the quadratic polynomial, so there are two zeros because it is a quadratic polynomial, and suppose one of the zeros is alpha is equal to 2, the other one is minus 3 here. So what we can do here is, so we can do two things. Okay, so the first thing, there are two methods I can say. So there are two methods. The first method we will discuss here, in which you can substitute the value of at x is equal to 2, so this will be 2 square a plus 1 into 2 plus b is equal to 0, so that is 4 plus 2a plus 2 plus b is equal to 0, so that will be 6 plus 2a plus b is equal to 0. That is the first equation we get from here. And if you substitute x is equal to minus 3, so you will get minus 3 square a plus 1 minus 3 plus b is equal to 0, so 9 minus 3a minus 3 plus b is equal to 0, so that will be 6 minus 3a plus b is equal to 0. That is the second equation, solving first and second equation together. Okay, so what we can do here is solving first and second equation together. Solving equation 1 and 2, what we do get is 6 plus 2a plus b is equal to 0, and from here what we do get is 6 minus 3a plus b is equal to 0. Okay, and if you solve it further, so what we do get from here, let's see. So this b will get cancel out if we subtract, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, and this b will get cancel out, and what we do have from here is 5a is equal to 0, so the value of a comes out to be 0 from here. यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो दोस्तों, यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a इनटू द गिवन इक्वेशन, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, तो 6 प्लस 0 प्लस b, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6. ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू माइनस 6. अब देखो दोस्तों, दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं, एंड व्हाट वी कैन डू इन दिस मेथड इज वी कैन सिंपली राइट इट डाउन लाइक दिस, टू रूट्स ऑफ द बोथ द रूट्स ऑफ द और बोथ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नोन टू यू. तो हम क्या कर सकते हैं, x माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली इसमें रख दो. ठीक है, यहाँ से क्या होगा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 माइनस 3 एक्स प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एंड सो द a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू माइनस 6. So we get the answers quite easily, and this is the second method, method number 2. So there may be one more, there can be many methods to solve the equation and get to the solution. And in case of MCQ guys, you are supposed to get to the solutions very easily. तो जैसे भी आप easily पहुंच सको solution तक, वही method आपके लिए अच्छा है. The method has to be correct, should be applicable to in all situation. आप फर्स्ट मेथड लगा सकते हो, सेकंड मेथड लगा सकते हो, बहुत सारे इजी. ठीक है, और यू विल गेट द सेम आंसर इन बोथ केस. ठीक है, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से. कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, और आगे चलते हैं, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाक से. सो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज आर, सो व्हाट वी कैन डू हियर इज द नंबर ऑफ, सो वन ऑफ द रूट इज -2, अदर रूट इज 5, एंड एज वी नो x minus alpha, x minus beta, solving it further gives us x minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. So one of the root is -2, other one is 5. Here -2 and 5. So that will be x square, and it will be minus 3x minus 10 is equal to 0. So guys, this is one of the polynomial, but how many polynomials we can have? So if we multiply the equation by k, and k can be any number, so we'll get the
k can be any number possible. So we can have infinite number of polynomials with the same number of zeros. With the same zeros we can have any number of polynomials, so it will be more than 3 because there is no option here, infinite का option नहीं है, so we'll simply write more than 3. ठीक है. So k can have any value. K is any number, any real number we can say. ठीक है. So k is any real number and simply we can have any number of polynomial. Okay, समझ में आया हो? अब देखो इसमें नया क्वेश्चन है, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज 0. तो एक क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरो जो है वो 0 ही है. ठीक है. सो प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज इज. तो हमें सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. तो क्वेश्चन सेज इफ देयर आर, दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल है ना, सो देयर विल बी 3 रूट्स अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है. And if he says alpha is equal to 0, then what we have to do is find out the product of other 2 zeros. यानी बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है, बीटा इंटू गामा की वैल्यू हमें सब निकालनी है, यहाँ से बीटा इंटू गामा की वैल्यू सब फाइंड आउट करनी है. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोज और and their coefficient, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में सॉल्यूशन हमें पता है. एंड दिस इक्वेशन इज गिवन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx इज इक्वल टू d, अगर ये इक्वेशन है जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दे रखी है. सो वी हैव 3 रिलेशनशिप. फर्स्ट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन है. ठीक है. सेकेंड इज अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन है. अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन है. तो ये हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप है, ये सेकंड, ये थर्ड. ठीक है. ये सम ऑफ द रूट्स, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो गाइस अगर हम इक्वेशन सेकंड को यूज़ करें, इतनी सब चीज़ें हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है बिकॉज दिस टाइम यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर प्रोसेस. बट अगर आप इसको अच्छे समझना चाहते हैं तो यू शुड नो ऑल ऑफ दिस एंड यू शुड कीप ऑन राइटिंग दिस थिंग्स टू रिमेंबर. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन सिंपली राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 2. ठीक है. अल्फा इज इक्वल टू 0, सो दिस इज 0 है ना. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू 0 इंटू बीटा प्लस बीटा गामा, गामा इंटू 0 दैट इज c बाई ए. ठीक है. यहाँ से बीटा गामा की वैल्यू आ गई c बाई ए, दैट इज द आंसर है. ठीक है. सो दिस इज द आंसर है. और ये आपको फटाक से पता चल जाना चाहिए था. हमने बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड, लेकिन आपको इसको फटाक से सॉल्व करके आगे बढ़ना था. और जैसे मैं हर बार बताता हूँ वीडियो में कि वीडियो से समझने का इंटरेक्टिव तरीका क्या है कि आप अगर आपको पहले से कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वीडियो से कोई भी टॉपिक आप समझ रहे हो, तो अगर आपको टॉपिक पहले से पता है, इफ़ यू नो समथिंग अबाउट इट है ना, तो उसको एक बार फॉर्मली रिवाइज कर लो, देन स्टार्ट सॉल्विंग अलोंग विद. ठीक है. तो कैसे करोगे, नया क्वेश्चन आया, पॉज कर दो, स्टार्ट सॉल्विंग इट. वंस यू गेट टू द सॉल्यूशन, वंस यू गेट टू द आंसर, उसके बाद फिर वेरीफाई करो सही है गलत. लेकिन अगर आप इसको पहली बार कर रहे हो टॉपिक को, आपको नहीं समझ में आया कुछ भी, सो फॉलो इट थ्रू, और उसके बाद फिर दोबारा नेक्स्ट बार में उसी वीडियो को ओपन करो एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग इट बाय पॉजिंग इट whenever the new question arise and solving it by yourself, और फिर ट्राई करो. तो इस तरीके से इंटरेक्टिव तरीके से वीडियो में पढ़ना होता है. कोई भी अगर डाउट आता है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स और हम उसका सॉल्यूशन भी जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा देंगे. इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल इज -1, तो अगर एक जीरोज किसी भी कोई क्यूबिक पोलिनोमियल का एक जीरोज हमारा -1 है, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर 2 जीरोज. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन. तो दिस टाइम हम थोड़ा फास्ट करेंगे इसको. कैसे करेंगे देखो. तो इसमें इफ़ यू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d, ये हमारी स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन है. इसके हिसाब से हम a b c की वैल्यू रखते हैं. तो इसमें अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाई a. एंड अकॉर्डिंग टू द this c and a are according to the standard equation. This is the standard equation. ठीक है.
ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से c बाई ए होता है, और वी कैन अदर इन द अदर वे ऑफ राइटिंग इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x. तो हियर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज b, एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 1. So this is the situation here, and since alpha is equal to one of the root is given to us -1, so we can substitute -1 into बीटा. ठीक है, उसके बाद बीटा गामा प्लस गामा और -1 इज इक्वल टू बी. ठीक है, तो इसमें -1, तो ये माइनस सब्स्टिट्यूट कर लो, माइनस क्या कर लो, कॉमन उठा लो, बी प्लस वाई, बीटा प्लस गामा, बीटा गामा इज इक्वल टू बी. और यहाँ बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, एज वी नो फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए, और यू कैन से माइनस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. ठीक है, और यहाँ पर अगर अल्फा की वैल्यू -1 रख देंगे तो -1 प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी दोस्तों. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है, अल्फा बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पर -b अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना a है, तो यहाँ पर आ जाएगा a अपॉन 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1. ठीक है, सो बीटा प्लस गामा is equal to -a plus 1. Okay, this is the second equation. So we can simply write here from equation 1 and 2. ठीक है, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 माइनस ए लिख देते हैं. सो ये हो जाएगी -1 माइनस ए प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू बी. Solving it further in order to find the value of beta gamma, that is b plus 1 minus a or b plus 1 minus a. So the value of beta gamma comes out to be b plus 1 minus a, and in the options given to us, so b plus 1 minus a is, which one is the right answer? Let's see here. So b plus 1 minus a, तो फर्स्ट वाला ही सही ऑप्शन है, and there are many options given to you. तो प्लीज डू नॉट टिक द ऑप्शंस इन हरी, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ऑप्शंस को टिक करके आगे ना बढ़े. जो भी आपका आंसर है, प्लीज़ डू फाइंड द आंसर्स वेरी केयरफुली एंड देन टिक द आंसर्स केयरफुली एज वेल. क्योंकि अगर आपने सॉल्यूशन ठीक किया है, प्रोसेस ठीक किया है, एंड यू टिक द रॉन्ग आंसर इन हरी और समथिंग एंजाइटी, तो प्लीज़ ऐसा ना करें. ऐसा करेंगे तो आंसर जो भी होगा उसी के हिसाब से नंबर मिलेंगे और 0 भी मिल सकता है. ठीक है. Okay guys, what we can do in this question, let's see. So as we know the relationship between zeros and coefficient of quadratic equation. So if the quadratic equations is this ax square plus bx plus c is equal to 0, then alpha plus beta is minus b by a, alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha beta is equal to c by a, alpha plus beta is minus b by a, alpha beta c by a. Or you can simply write it down like the coefficient of b is a coefficient of x, e is a coefficient of x square and c is a constant term. ठीक है, अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 99 माइनस 99 अपॉन 1, क्योंकि यहाँ पर अल्फा ए बी सी की वैल्यू क्या है, वो ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू 99 और सी की वैल्यू 127. अब यहाँ पर अल्फा बीटा कितना आएगा आपका 127. ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अब ये कैसे होता है, तो ये आप चाहे तो सोल्व करके देख लीजिए. अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो माइनस 4 अल्फा बीटा करेंगे दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा.
Okay, so what we can do here is, this is for alpha beta, and what we can do here is, so alpha minus beta whole square is equal to minus 99 का square minus 4 into 127. So 99 का square is 9801 minus 508, and 9801 9293, that is alpha minus beta whole square, and alpha minus beta will be, that will be the 96 point, the value of it will be 96.40 you can say, ठीक है, 96.40 we can say. And if we write down the value of alpha plus beta, that is minus 99, alpha minus beta we just calculated 96.40. so from here, as we can see, we'll simply add these two equations. So we'll have 2 alpha is equal to, and this is, so this will be 2.60, okay, and alpha comes out to be minus 1.30, and similarly if we substitute the value of alpha here, the beta will comes out to be, minus 99 plus 1.30, so that will be 97.30, and that will be minus. So as you can see here, both the terms are of negative sign, so both are negative. Okay, this is what we are supposed to find in our, this is what we are supposed to find out this question. So both the zeros will be negative here. Okay, and this is one of the way of writing it down. If you know the quadratic formula, we can find it directly, and that will be more convenient. Or in situations like this where you are not supposed to get the process right, in situations like this where you are not supposed to get the process right, so you can apply the any other methods as well. So if you apply the second method, in this, in the equation x square minus 99x plus 127 is equal to 0 as the equation given to us, plus है, ठीक है. So we can apply the formula directly, minus 99 plus minus under root of 99 minus 4 into 127 upon 2 into a, and the a here is 1 as well, because the formula was minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, that was the formula. So in this case, as you can see here, this value will be, if you solve this further, so that will be 96.40 upon 2. So in any possible case, the value will always be negative. The value will always be negative in both the cases. So you can simply find it from here within the minutes that both the zeros will be of negative sign. Okay? So this is one of the easiest way to find it out, because in this situations when you are supposed to find the answer of a question, and आपको सिर्फ आंसर ही टिक करना है, तो ये भी ज़रूरी है कि आप ये भी समझें कि कैसे आपको आंसर जल्दी मिल सकता है. देयर कैन बी मैनी मेथड्स, लेकिन हम जल्दी वाले पे ही फोकस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस इज, we are supposed to find out the zeros of this quadratic polynomial, and we have to figure it out whether they are equal, positive, negative, and whatever how they can be. ठीक है, so as we just discussed, x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a, that is the quadratic formula in order to find the roots of the quadratic equations. So from the given situation here, the value of a is 1, b is k, and c is also k, because if you compare the given equation with standard quadratic equation, which is ax square bx plus c, so this will be the values of a b c. और इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करने आप in order to find the roots of the given quadratic equation, so that will be minus k plus minus under the root that will be b square, so that will be k square minus 4 into 1 into k, and in the denominator what we do have is 2 into a
and the value of a is 1 only. So this is the situation here. Okay, now these are the values of x, the roots, and as we are supposed to find out the zeros, whether they will be positive, negative, or equal, unequal. So what should be the situation here? What we can say from the given condition is that anything inside the under root has to be greater than or equal to 0. So this should be k minus 4k. This has to be greater than or equal to 0. So the value of k is, k taken out common, so k minus 4 greater than equal to 0. अब देखो इसमें k greater than equal to 0, तो एक साइन कन्वेंशन मेथड होता है हमारा. अब इसमें क्या करेंगे, k greater than equal to 0, तो k की वैल्यू जो ग्रेटर होगी, सो एक k की वैल्यू आती है 0 और एक आती है k की वैल्यू 4. तो जो ग्रेटर वाली होती है तो साइन के साथ जाती है, तो k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4 एंड k इज लेस देन 0. दीज टू वैल्यूज आएंगी और इससे हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी, सो k बिलोंग्स टू 4 to infinity यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 0. ठीक है. सो द बोथ द रूट्स आर नॉट इक्वल, है ना, एंड they cannot be both negative, they cannot both be positive, they will be always unequal because one of the roots, one of the values may be from this and other values from this. ठीक है. तो हम इसमें से कौन सा टिक करेंगे, सो will both cannot be positive, ये वाला टिक करके आगे बढ़ेंगे क्योंकि फर्स्ट वाला ही ज़्यादा ट्रू है, both cannot be positive. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टॉपिक, एंड हियर वी हैव, if the zeros of the quadratic polynomials are equal, if the zeros are equal, then what is the situation here? So one of the C and A have opposite sign, C and B have opposite sign, C and A have same sign, C and B have same sign. देखते हैं क्या हो सकता है. So one of the zeros is alpha, the other is also alpha. ठीक. So alpha plus alpha is equal to माइनस बी अपॉन ए. तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा कम्स आउट टू बी अपॉन 2a. सिमिलरली अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा की वैल्यू आ गई अंडर रूट सी बाई ए. इन दोनों को अगर कंपेयर कर दें, सो माइनस बी बाई ए, बिकॉज बोथ आर द वैल्यू ऑफ अल्फा, सो इक्वेटिंग दैम इज इक्वल टू अंडर द रूट सी बाई ए. Squaring both sides will result into b square upon 4a square is equal to c by a. यहाँ से एक a कट जाएगा, so b square is equal to 4ac, which we could have get easily by simply writing it down in the नेचर ऑफ रूट्स में हमने पढ़ा होगा. इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर आपने पढ़ लिया तो यू मस्ट बी नोइंग इट. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फॉर द जीरोस टू बी इक्वल. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. अब क्या सिचुएशन है, अब देखो b, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर. तो a और c का साइन क्या क्या हो सकते हैं, तो a एंड c शुड हैव द सेम साइन इन एनी पॉसिबल केस. अगर कुछ भी डिफरेंट होगा, है ना, a एंड c शुड हैव द सेम साइन. या तो दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि सी और बी अगर सेम साइन होंगे तो सी का मान लो नेगेटिव है, बी का भी नेगेटिव है, सो दिस विल नॉट बी इक्वल टू दिस. ऐसे ही सी और बी अगर अपोजिट साइन के होंगे तो सी का नेगेटिव है, बी का पॉजिटिव है, तो भी नहीं होंगे. सी और ए हैज़ द अपोजिट साइन, अगर इन दोनों का साइन प्लस माइनस है तो भी नहीं होगा. तो सी एंड ए हैव द सेम साइन. दिस इज द ओनली क्राइटेरिया विच इज सेटिस्फाइड बाय दिस. और ये जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स में हम पढ़ चुके हैं. अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी है, चैप्टर नंबर 4 में था ये. सो नाउ दिस इज ए MCQ टाइप क्वेश्चन, सो यू आर नॉट लाइबल टू राइट द प्रोसेस. आपको सिर्फ इतना लिखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac यू गेट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, एंड नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू इट. So this way you will get to the answer easily. तो हमें ये भी देखना है कि now we should reach to the answer easily and shortest possible time. तो अब ऐसे सिर्फ हमें प्रोसेस नहीं दिखाना है, प्रोसेस के कोई मार्क्स नहीं है. we have to get to the solutions, we have get to the answer in a कोई shortest possible time. So tips and tricks are always there. So this is the tips
टू गेट टू द आंसर डायरेक्टली, और यही ट्रिक भी है। नाउ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म इज द नेगेटिव ऑफ द अदर। तो एक जीरो अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है, हैज नो लीनियर टर्म, कांस्टेंट टर्म इज जीरो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए when the equation is of this form, but from this situation here the coefficient of x is a and the coefficient of x square is 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए, तो a इज इक्वल टू जीरो हो गया यहाँ से। तो a इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये वाला टर्म हमारा जीरो हो गया। a is the coefficient of what is a here? A is the coefficient of x, so x square plus b is equal to 0, ठीक है। x square plus b is equal to 0, तो ये हमारा एक कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, देखो हम, तो हमारा जो लीनियर टर्म है कि लीनियर टर्म तो नहीं बन रहा है, नो लीनियर टर्म है ना, और कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म देखो हमारा क्या आता है, लीनियर टर्म तो नहीं है, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज एक्स स्क्वायर प्लस बी इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बोथ द टर्म इज, तो ये लीनियर टर्म तो नहीं है। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी इज अ कांस्टेंट, सो देयर शुड नॉट बी एनी लीनियर टर्म हियर। नाउ द सिचुएशन अराइज वेयर द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसमें अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी, सो माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी। तो हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो भी नेगेटिव है, सो द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हमारा नेगेटिव हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हमारा पॉजिटिव नहीं रहेगा, बिकॉज द कोफिशिएंट, बिकॉज वन ऑफ द जीरोज इज नेगेटिव ऑफ द अदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो ग्राफ फॉर द ग्राफ टू बी ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या सिचुएशन हो सकती है। तो अगर हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। ये तीन कंडीशन कब है, तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन कब है, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, टू रूट्स आर देयर एंड द रूट्स आर इक्वल, ये वाली कंडीशन। दिस इज द सिचुएशन फॉर बी। ये सिचुएशन है सी के लिए, और ये सिचुएशन है ए के लिए। The roots are there, but they are not touching the x-axis or not cutting the x-axis, you can say. So the roots will be imaginary, but there will be two roots. But in this case, the equation, so the graph is interacting with the x-axis 3 times, so it will be cubic equation. So this will not be the graph of quadratic polynomial. I hope you understand, because zeros, roots और solution का मतलब ये है कि graph should cut the x-axis at 2 point for the zeros to be real and distinct or real and equal. But if it is not, even if it is not cutting the interacting with the x-axis, so graph will not touch the x-axis, but the roots will be 2 only. So if one of the quadratic polynomial is 2, so one of the quadratic polynomial is 2, so we are supposed to find the value of k here. So what we can do is x is equal to 2, substitute that into the equation. So 2 square 3 into 2 plus k is equal to 0, as we have discussed. If the given zeros is of the quadratic polynomial, given zeros root solution is of the quadratic polynomial, then it should satisfy it. It should be equal to 0 if we substitute that into the equation. So 4 plus 6 plus k is equal to 0, so k comes out to -10. Quite easy है ना। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उनके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है, उनके लिए भी आपको
सही से सोल्व करना है एंड आंसर को अच्छे से टिक करना है, ऐसा नहीं कुछ भी जल्दबाजी में करके आ जाओ। नाउ गिवन 2 ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आर जीरो ओनली। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ही दे रखी है, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए इज माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा बीटा गामा सी अपॉन ए अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए। अब वो कह रहा है थर्ड जीरो बताओ। तो इसमें देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट। सो अल्फा इज ज़ीरो, बीटा इज ज़ीरो, गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा गामा कितना आ गया, वन ऑफ द रूट्स कितना आ गया, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो इन रिलेशनशिप को आप यूज़ कर सकते हैं गाइस और आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। बट यू मस्ट रिमेंबर दिस रिलेशनशिप। नाउ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब देखो ये भी काफ़ी ईजी है, समझ के चलो इसको भी, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा। अब इसमें क्या करो, आप इसका एलसीएम ले लो, दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा, और इसको अगर इसमें लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब इसमें ठीक है, अब इसमें क्या करो, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू हैव इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप पहले से निकाल के रख लो। इसमें कैसे निकालोगे, आपको रिलेशनशिप मालूम है, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन, आप अगर इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सो व्हाट वी डू हैव एज ए बी इज माइनस 1, बी हमारा 1 है तो माइनस 1 इसको लिख लेंगे, माइनस बी अपॉन ए क्योंकि माइनस ऑलरेडी है और ये 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 1 और अल्फा बीटा हमारा है सी अपॉन ए, सो 1 अपॉन 1। ठीक है, सो द अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 1, ये 1, तो आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 1। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको समझ के अच्छे से चलते हैं तो ज़रूर आपसे हो जाएगा। और गाइस कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर गाइस आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से मज़ा आ रहा है, समझने में अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स कि अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। और कुछ और भी अगर आपको चाहिए इसी टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे क्लास 9 से लेकर 12 तक का मैथमेटिक्स का, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और समझते जाइए, लाइक करते जाइए वीडियो को, शेयर करते जाइए फ्रेंड के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So guys, what we can do here is, first of all try to compare the given equation with the standard quadratic equation। ठीक है, ये हमारा fx दे दिया आपको, यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 7। नाउ सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन माइनस 3/4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन 7/4। अब इसमें देखो 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा। सो द वैल्यू विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा विल सिंपली सब्स्टिट्यूट माइनस 3/4 अपॉन 7/4। सो व्हाट वी डू गेट फ्रॉम हियर माइनस 3/7। सो माइनस 3/7 इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से फटाफट आप कर देना इनको, और अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आप करके जाओगे तो यू विल गेट 100 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन कम 1। और किसी और एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो मान लो एक अल्फा है दूसरा 1 बाई अल्फा है। ठीक है, ये सिचुएशन है, समझ रहे हो ना। तो व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड वैल्यू ऑफ के हियर। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर अगर इस गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर प्लस 4, b की वैल्यू 13, c की वैल्यू 4k, क्योंकि c तो कांस्टेंट होता है, हाँ, तो जो भी कुछ है वो c है। अब इसमें सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a माइनस 13 अपॉन k स्क्वायर बाय 4, और दूसरा अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा
प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए कितना हो गया 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4। अब देखो ये जो हमारा इक्वेशंस बनी है इसमें ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ से ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, दिस अल्फ़ा विल गेट कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। तो इसको दोबारा से सही से लिख लो, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। तो इसको लिख सकते हो अल्फ़ा इंटू 1/α, ठीक है। ये कट गया अभी देखो। सो 4k अपॉन k प्लस 4 इज इक्वल टू 1, सो k प्लस 4 माइनस 4k, सो दिस इज k प्लस 2 का k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So the value of k comes out to be 2. So two values of k comes out from here, and that two values are k. Of both the values of k are 2. क्योंकि k माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो both the values of k is 2. तो इस तरह के आसान क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। तो रिलेशनशिप याद रखना है आपको और अच्छे से सॉल्व करना है इसको, प्रोसेस में कोई मिस्टेक नहीं करना है और टिक भी ध्यान से करना है। इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस इज दिस देन द वैल्यू ऑफ k, तो सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो सम ऑफ द जीरोज क्या होता है देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है सम ऑफ द जीरोज, और ये होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन। अगर इसको हम कंपेयर कर दें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सॉरी स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन से, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज, हमें यहाँ पर 6 दे रखा है, और माइनस बी अपॉन ए के हिसाब से यहाँ पर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3k, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, एंड दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ हो गया 3k अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, और यहाँ से 3 से ये कट गया, सो द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 4। द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी 4। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, आसान क्वेश्चन है, आपको समझ के अच्छे से चलना है और अच्छे से सोल्व करना है। तो सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यू शुड नो द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के सम ऑफ द जीरोज क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन। अभी ये ध्यान रखो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से क्या क्या है। तो b क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये यहाँ से ध्यान रखो। a क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन द पॉलिनोमियल हैविंग 1/α 1/β इट्स जीरोज इज। तो ऐसा पॉलिनोमियल बताना इसमें 1/α और 1/β होंगे। तो पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी -p/1, क्योंकि फिर से देखो क्या करना है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और ये क्या होता है -b/a। तो b यहाँ पर क्या है p है, और a क्या है 1 है। सिमिलरली अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन c हमारा है यहाँ पर q/1, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करो देखो, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स 1/α और 1/β हैं, तो दिस विल बी द सिचुएशन है। ये सिचुएशन होगी 1/α इंटू 1/β, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और इसको अगर फर्दर सोल्व करें हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1/α बीटा इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। और इसमें अगर हम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की विच इज़ -p, और अल्फा बीटा की विच इज़ q, और ऐसे ही अल्फा बीटा की विच इज़ q, तो हमारी सॉल्यूशन बन जाएगा qx² प्लस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो qx² प्लस px प्लस 1, तो ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मुझे यहाँ से ये कैसे मिला, तो गैस ये तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, सो अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अगर मान लो किसी इक्वेशन के रूट्स हमें दे रखे हैं, सो हाउ डू वी फाइंड इट आउट। सो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, विच इज़ अल्फा प्लस बीटा इज x प्लस अल्फा बीटा 0। और अगर किसी इक्वेशन के
रूट्स जो है 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा है, तो सिमिलरली दैट विल बी x माइनस अल्फ़ा x माइनस 1 बाई बीटा एंड दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। दैट्स हाउ वी गेट इट। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो इनको। तो क्वेश्चंस आर नॉट वेरी डिफिकल्ट एज यू कैन सी हियर। ओनली थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज जस्ट अप्लाई द मेथड्स करेक्ट, और उसके बाद ध्यान से टिक करना है सॉल्यूशन को। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स सच दैट दिस वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन, इसके जीरोज हैं। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करना ना भूलें। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू क्या आएगी देखो। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व कर लूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन कर लें, तो गिवन इक्वेशन को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू माइनस पी और सी की वैल्यू माइनस पी प्लस सी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच, माइनस पी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर माइनस बी में बी क्या है माइनस पी है, तो ये हो जाएगा पी अपॉन 1। और सिमिलरली अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है माइनस पी प्लस सी अपॉन 1, ए हमारा 1 है। अब हमें एक ऐसे, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 की। तो सॉल्विंग इट फर्दर दैट विल गिव्स अस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम सीधे रख देंगे माइनस पी प्लस सी, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है पी प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस पी माइनस सी प्लस पी 1, और यहाँ से देखो पी से पी कट जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा 1 माइनस सी। तो ये हमारा सॉल्यूशन है 1 माइनस सी। तो इस तरीके से अगर आप भी करेंगे तो आपका भी सॉल्यूशन करेक्ट ही आएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सारे मेथड्स करेक्टली लगाने हैं, सारे फॉर्मूले करेक्टली याद रखने हैं, और उसके बाद आपको आंसर आने के बाद सही से ध्यान से देख कर टिक करना है विच वन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट करते हैं दोस्तों। अब देखो अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें अल्फा बीटा जीरोज, इसमें भी अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखे हैं, और ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन इसमें इस बार वैल्यू सी की निकालनी है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी हियर। द सिचुएशन इज बिट डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। तो इसको अगर कंपेयर करें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, विच इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू माइनस पी और सी की वैल्यू माइनस पी प्लस सी। तो जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए अगर आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिख लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू विजुअलाइज द सिचुएशन, और एक बार कॉपी में लिखेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऐड द आंसर करेक्टली। अब देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इसके सॉल्यूशन, इसके जीरोज हैं, तो माइनस बी अपॉन ए, और फ्रॉम हियर दैट इज पी अपॉन 1, अल्फा बीटा कम्स आउट फ्रॉम हियर इज सी अपॉन ए, एंड फ्रॉम द गिवन सिचुएशन माइनस पी प्लस सी अपॉन 1। अब आपको निकालना है सॉल्यूशन। इफ अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो अल्फा बीटा कितना हो जाएगा माइनस पी माइनस सी, और अल्फा बीटा पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू हो जाएगी 1, द वैल्यू ऑफ सी कम्स आउट टू बी 1 फ्रॉम हियर। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व किया, ओनली देयर इज ए वन चेंज विच इज यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, तो दोस्तों ओके, दिस वाज वन ऑफ द इजी वे टू सॉल्व इट आउट।
ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, दिस वॉज क्वाइट सिमिलर टू द लास्ट वन। तो फिर मिलते हैं, आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए आप बताना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, कैसे और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। सो विल मीट यू टुमारो और इन द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये तो बनता है। ओके, बाय बाय।